Chidakasha Gita session. आपका स्वागत है भगवान नित्यानंद के चिदाकाश गीता के पहले एपिसोड में, जो इंट्रोडक्शन है. So this is all about the life of Bhagwan Nithyananda and his teachings. I'd like to begin today with the introduction, and verses I'll be beginning from tomorrow. But it is important for us to know the basics of Chidakasha Gita. कल से मैं वर्सेस ये टीचिंग जो है शुरू करूँगा, और आज मैं इसके बारे में थोड़ा विवरण दूंगा, इंट्रोडक्शन, ताकि हमको समझ आए कि हम किस पर ध्यान कर रहे हैं. 286 वर्सेस आर देयर टोटली. मेरे ख्याल से ये एक साल तक चलेगा. इट माइट गो ऑन फॉर अ ईयर. एवरी डे वन वर्स वी विल टेक एंड वी विल कंटेम्पलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट. भगवान नित्यानंदा is known as Bhagwan because he had reached that state. He was a self-realized being already by birth. Also known as Avadut Bhagwan Nithyananda. Avadut because beyond all the gunas. Bhagwan because he's godly. मैं दोनों भी लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बात करूँगा, so that it's easy for you to understand both the languages. उनका कोई बर्थ का या उनका जन्म का कोई आधार नहीं रहा. There has been no proper understanding of his birth. He was found as a baby in Kannada, somewhere in Kerala near Koilandi, near Kannada that is. वो एक जंगल में मिले थे. माता पिता का कोई पता नहीं. उन्नी अम्मा, एक जो गरीब औरत थी, उन्होंने उस बच्चे को उठाया और जिस घर में काम करती थी वहाँ ले गई. ईश्वर अय्यर उनका नाम था, वकील थे. He was an advocate, ईश्वर अय्यर. Unni Amma took this baby from this jungle. And took him to the advocate's place, where he grew up. He was named Ram. किसी को पता नहीं, लेकिन बच्चे का नाम राम रखा गया. कई साल बाद उन्नी अम्मा जो उन बच्चे का देखभाल कर रही थी, गरीब औरत, उनका देहांत हो गया. She died. उन्नी अम्मा died after some days, some years, and then ईश्वर अय्यर continued taking care of Bhagwan Nithyananda. ईश्वर अय्यर उनका देखभाल करते रहे फिर इस बच्चे को. इनका नाम था राम. वो वहीं बड़े हुए केरल में, और बचपन से ही कुछ लीलाएं करने लगे. From his young age only he started doing many feats, and thus everybody recognized him as a special baby. As he grew up in Kannada, not exactly in Kannada, he was around Koilandi in Kerala. He became known because he was outstanding among other children. At a very young age, he wanted to go on a pilgrimage along with his father. They went to the Himalayas. हिमालय चले गए.
पिता के साथ तीर्थ यात्रा पे पूरा भ्रमण करने के बाद जब बनारस पहुंचे, आफ्टर द पिलग्रिमेज व्हेन दे रीच्ड बनारस, उन्होंने कहा उनके पिता को कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा. He refused to come back and he asked his father to go back. His father was devastated. पिता बहुत मायूस हुए, but he insisted that he has to go further and he went on towards the Himalayas. हिमालय चले गए. पिता वापस लौटे नाराज होकर, बहुत मायूस थे. कुछ साल बाद पिता देह छोड़ने वाले थे तो अचानक राम लौट आए. One day when Ishwarayar was about to leave his body, Ram had returned home. Ishwarayar knew that he was going to leave, and the only desire that he had was to have a vision, darshan of his Ishta, his deity, the sun god. एक ही इच्छा थी उनको, ईश्वरय्य श्री को, कि उनके जो इष्ट हैं सूर्य नारायण, उनका दर्शन हो. भगवान नित्यानंद ने वह दर्शन उनको दे दिया. तो भगवान नित्यानंद granted him that vision and he was very happy. He left his body with great regards and respect. That day he called him Nityananda. उस दिन उन्होंने उनको नित्यानंद बुलाया. वो बोले आपका नाम राम नहीं, आज से नित्यानंद, क्योंकि ये नित्य आनंद आपने मेरे अंदर प्रकट किया. आप सबको ये नित्यानंद दोगे. He said that today I have had this bliss, this eternal bliss, Nityananda. You have given me this, and so you will be known as Nityananda, because you will be granting the same eternal bliss to the entire world. From then, he came to be known as Nityananda. And then, after that, he proceeded further, and all his feats came to be known one by one. He went to Guruvan, a place in Kannada, and these remain mysteries because there is no clarity exactly about his life incidents. उसके बाद वो केरल में घूमे. उनकी जिंदगी के बारे में कोई ऐसा क्लियर विवरण नहीं है, लेकिन जो भी जुटा पाए, जो भक्तों ने देखा उनको, उनके बारे में लिखा, वही उल्लेख हम तक पहुंच गया. Whatever some of his devotees wrote here and there about his life sketches, that came to be known to us. That is how the reading from Bhagwan Nithyananda reached us. This is just brief. I am not going too detailed. मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. बाकी जो भी ये इनके बारे में सुने, भगवान नित्यानंद के बारे में, ये इंट्रोडक्शन रहे. पूरी जानकारी के लिए आप उनके वेबसाइट्स देख सकते हो. इंटरनेट पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं सीधे उनकी टीचिंग्स जो है उस पर आऊँगा. So for more information, you can look into the internet. You will find a lot about Bhagwan Nithyananda. He is often confused with other
people of the same name, but he is Nityananda of Kannada and Ganeshpuri. Somebody who left his body in 1961. थोड़ा कंफ्यूजन होता है इनके नाम से, नित्यानंद। दूसरे लोगों के नाम के साथ तुलना की जाती है, लेकिन ये भगवान नित्यानंद एक अवधूत थे जो 1961 में अपना देह छोड़े गणेशपुरी में। अब मैं इनके बारे में इतना इंटरेस्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा अध्यात्म का शुरुआत इनसे ही हुआ, इनके वजह से हुआ, इनकी कृपा से हुआ। आई एम टॉकिंग सो मच अबाउट भगवान नित्यानंद बिकॉज बैक इन 2009 में हुए my journey started with Bhagwan Nithyananda. With his grace, I am what I am, whatever I am today. So all my learnings, all my experience, including me going and reaching my Gurudev, Avadut Shivanand, was all due to his grace. I know now. भगवान नित्यानंद की वजह से ही मैं अपने गुरुदेव तक पहुंच सका और वहां से मेरी यात्रा और तीव्र हुई। तो बताने का तात्पर्य ये है कि वो कहीं गए नहीं भगवान नित्यानंद, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था इन सब तत्वों के बारे में। आई नेवर न्यू अबाउट ऑल दिस, इट्स नॉट गॉन एनीवेयर। I just happened to walk one day. I'm not going too much into detail. Walk one day into Ganeshpuri from a life of complete distress, utter hopelessness, helplessness, depression, suicidal tendencies. My feet walked towards Ganeshpuri, God knows how. And from there, my life suddenly changed. बहुत ही निराश हताश हुआ था मैं 2009 में, आत्महत्या तक की सोची थी। तो पता नहीं मेरे कदम कैसे और क्यों गणेशपुरी की ओर चले गए, और वहां जाने के बाद अचानक सब चेंज हो गया, सब बदल गया। मैं नहीं कहूँगा कि जिंदगी बहुत अच्छी रही, आई डोंट से दैट लाइफ वाज वेरी इजी, बट काफ़ी समय लगा ये सब समझने को, कम से कम 10 साल लगे। Almost 10 years it took for me to understand what is all this about, because it made no sense, and he is not in the physical body. How can things happen? Because we are so connected to the physicality. तो ये समझ नहीं आता था कि शरीर में नहीं है तो क्या हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ हुआ। So I'm leaving these videos recorded even after the live, so that जो भी live नहीं देख पाए, whoever cannot see the live can see the recordings, and you will be able to connect to the tattvas of such great mystics who never die. Their consciousness is so powerful and omniscient that they are everywhere. It only needs a connection from our side, an alignment from our side. ये कभी गए नहीं ऐसे महात्मा, ऐसे अवतार पुरुष कभी जाते नहीं, उनकी चेतना नित्य है, वो हमेशा है सूक्ष्म रूप में। कनेक्शन अपने को करना है, अपने को जुड़ना पड़ता है अलाइनमेंट के साथ। तो मेरा पूरा तात्पर्य, मेरा पूरी कोशिश इसी ओर है कि हम इन तत्वों से जुड़ सके जो हमें दिखता नहीं। My whole attempt is to encourage and inspire people to move and connect to such mighty beings who cannot be seen in their physicality. So I am making this attempt to demystify the Chidakasha Gita. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही कोशिश है कि उनकी जो टीचिंग्स रही है, उन्होंने जितने भी बातें बोली थी और जो लिखा गया था, उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक अपने हिसाब से उसको बताऊं, क्योंकि
क्योंकि चिदाकाश गीता जो है आसानी से समझ नहीं आती है। काफ़ी सारे लोगों ने बताया इसको, जब पढ़ते हैं समझ नहीं आती है. It's not easy to understand because many people say that if you read it, it's so confusing. That is because this was spoken by an avadut in the states of altered consciousness. क्योंकि ये बताया गया था एक अवधूत से, अवधूत के मुख से निकला है. जो हम जैसे चेतना में नहीं रहते, उनका चेतना अपार. वो जब भी बैठते थे, जहाँ भी बैठते थे, कुछ न कुछ जब बोलते थे, इसका कोई अर्थ नहीं होता था. टुकड़ों टुकड़ों में बोलते थे. Used to talk in bits and pieces because when you are not connected to your body consciousness, you are not connected to your five indriyas. पंच इंद्रिय से हम कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम शरीर बोध जब नहीं होता, पंच इंद्रिया का बोध नहीं होता, तो जताना बताना बोलना कठिन होता है. वेरी डिफिकल्ट टू यूज these expressions of five senses. And that is why in that altered states of consciousness, when he spoke in bits and pieces, sentences here and there. टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने जो भी बोला, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो थे, were there around him, began noting whatever they could. And one of the most important role played was of तुलसी अम्मा. तुलसी अम्मा ने, जो उनके भक्त थे, शिष्य थे, उन्होंने लिखना शुरू किया कन्नड़ भाषा में. She wrote it in Kannada. जो भी उनको समझ आता था, और विस्तार से लिखे, टुकड़ों टुकड़ों में लिखे. फिर भगवान नित्यानंद को दिखाए और उन्होंने परमिशन दी कि उसको किताब रूप में बांटा जाए. तो भगवान told Tulasi Amma to spread the teachings after he saw the thing that she had written, and he okayed it. But he had asked Tulasi Amma to keep it as it is, without any alteration. उन्होंने बताया था कि जैसे है वैसे ही इसको प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि ये एक रिस्क होता है कि टीचिंग्स गेट ऑल्टर्ड. इट्स नॉट अ बिग new thing. We have seen the teachings from the Vedas, the Upanishads, the Puranas, and other scriptures like even the Holy Bible and all of texts of other states, how over a period of time they get altered. कुछ समय के बाद वेद, पुराण, उपनिषद हमने देखा है, उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है अलग अलग स्वरूप में आता है. अपने अपनी चेतना के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन होता है. डिपेंडिंग ऑन ईच one's consciousness, they translate it. There are risks of misinterpreting the higher teachings, always. So utmost care has been given, at least from my side, with this attempt to keep it as highly conscious as possible. तो इसीलिए ये कोशिश रही है. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसका पूरा व्याख्यान कर रहा हूँ ठीक से. मैं अपनी चेतना के साथ उच्च के उच्च चेतना की अवस्था से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. और मैंने किया जो मैं 1 साल पहले या 2 साल पहले मैंने अपनी वेबसाइट पे डाली थी. आई हैड अटेम्प्टेड टू डू दिस एंड इट वाज पुट एंड इट वाज अ गुड हिट. लोगों ने बहुत पसंद किया इस चीज़ को. लेकिन फिर मैं उसको कुछ दिन के लिए निकाला, 1 साल के लिए निकाल दिया था. पूरा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट डिटेल्ड में नहीं. The interpretations are little detailed,
according to how I relate it with the journey in spirituality. I found that when I was reading and contemplating on the Chidakasha Gita, I always say contemplating. I don't say reading it. Contemplating or meditating on the scriptures. जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं उन पे ध्यान किया जाता है, उनको पढ़ा नहीं जाता। पढ़ने से समझ नहीं आती, पर पढ़ना लॉजिक होता है, ध्यान करना होता है, चिंतन करना होता है, मंथन करना होता है। हर एक टीचिंग, हर गुरु की, जो भी शास्त्र भी हम पढ़ते हैं पर ध्यान करना होता है। तो जितना मैंने चिंतन किया विथ माई अवेयरनेस, मेरी जागरूकता से मैंने जितना भी इस पे चिंतन किया, हाउ मच एवर आई कुड कॉन्टेम्पलेट, आई हैव लिस्टेड इट आउट, एंड दिस इज इन लिंक विथ द जर्नी ऑफ लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी लीडिंग टुवर्ड्स द हाईएस्ट गोल। तो ये सारा विवरण मैंने अंतिम जो अपनी गोल होती है, यात्रा का अंतिम पड़ाव मुक्ति का, उसको मद्देनजर रखते हुए लिखा है। और भगवान नित्यानंद की भी वही वाणी है, वही पहुंचाने का है, मुक्त करने वाली बातें हैं। ये बहुत कॉमन नहीं है इनके टीचिंग्स, इट्स नॉट वेरी कॉमन, you might not find it very easily anywhere, and even if you find it there are interpretations. ये मिलना बहुत आसान नहीं है इनके टीचिंग्स कहीं भी कमेंट्री के साथ, लेकिन अगर मिले तो भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। तो मैंने काफ़ी सारे जितने भी मेरे हाथ में आया मैंने सब पढ़ा है, आई रेड ऑल द इंटरप्रिटेशन, लेकिन आई हैव हैड लिटिल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन सर्टन प्लेसेस। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। तो इसलिए ये एक डिस्क्लेमर है कि आपको अगर ठीक लगे तो आप इस पर आगे बढ़े। मैं कभी क्लेम नहीं करूँगा कि मैंने जो लिखा है या मैं जो कोशिश कर रहा हूँ यही श्रेष्ठ है। आई विल नेवर क्लेम दैट whatever I am writing or whatever I am stating is the superior one. I leave it up to you as a disclaimer, as to use your own awareness and consciousness to read through them, to go through them and interpret in your own way. Bhagwan Nithyananda was very clear in his intention. He gave many messages to the seeker. बहुत सारे मैसेज उन्होंने दिए चिदाकाश गीता में। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। बहुत से हिंट्स है, बहुत से डायरेक्शंस है इनटू लाइफ। उनके सारे जो टीचिंग्स है मैंने उसको डिवाइड किए। जब मैंने पढ़ा 2-3 बार उसको डिवाइड किए तो कुछ टॉपिक्स बना। When I read the whole Chidakasha Gita and while I was contemplating on it, I split it into many what do you call subjects, many titles. I'll read them out. Basically, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन में कर रहा हूँ. Today I'm just doing the introduction so that you have a good understanding of what we are going into. तो जैसे उन्होंने 232 में वाले वर्स में, in verse 232, he has written a big one. He has mentioned a big para in which he said, have experience by yourself. यानी अपनी एक्सपीरियंस खुद पाओ. रियलाइज द आत्मा बाय योर ओन एफर्ट्स. अपने प्रयास से ही अपने आप को पहचानो. डू व्हाट यू डू विथ कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर. जो भी आप करते हो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से करो. तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, ये मैंने कोई सोच के नहीं बोल रहा था. आज सुबह मैंने किताब खोला तो इसमें ये निकला. तो ये सब दर्शाता है कि उनकी इच्छा यही थी कि आप स्वयं अपनी यात्रा पूर्ण करने की प्रयास करो. क्योंकि वहाँ यहाँ लिखे हैं, कुक फॉर योर सेल्फ.
अपना भोजन खुद खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि अपना पका के खाओ। वो कह रहे हैं कि अपना ध्यान खुद करो, अपना रास्ता खुद निकालो। डू नॉट डिजायर टू ईट वॉट अदर्स कुक। जो दूसरे बनाते हैं, पकाते हैं, उसको खाने की चेष्टा न करो, खुद अपना भोजन बनाओ। इसका अर्थ यही है, खुद अपनी यात्रा पे निकलो, खुद खोजो अपने आप को। तो उन्होंने पूरा डायरेक्शन की किताब में दिया है। तो पूरा अगर हम चिदाकाश गीता का सेपरेशन देखेंगे तो उन्होंने अधिकतर किस चीज पे लिखा है, मैंने उसका निकाला था, सार निकाला था। तो बहुत सारे वर्सेस, मेनी वर्सेस दैट ही रोट, मैक्सिमम दैट आई सी जो रिपीटेड अगेन एंड अगेन वर्सेस है, वो वननेस पे था। वननेस, अजात तत्व पे उन्होंने सबसे ज्यादा टीचिंग्स बताई, जो रिपीट 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 अलग अलग विवरण से उन्होंने दिया। तो ये बताता है कि चिदाकाश गीता इज बेस्ड ऑन अजात तत्व, spirit of oneness, non-duality, which is the final goal, the end goal. तो इस तरीके से अगर if we just see what is the separation from all the verses, और मैं आपको बताऊं all these verses जो हैं, जितने भी हम इतने बड़े पैराग्राफ दिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पैराग्राफ उन्होंने लिखा है, क्योंकि जो भी हमारे पास कॉपी है इसमें भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे ही बताया, क्योंकि उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में बताया था। तो जिन्होंने भी जोड़नी थी उसको ग्रामेटिकली उन्होंने जोड़ा है। Means whatever this big paragraphs you see here, I don't believe that Bhagwan Nithyananda has told this whole paragraph as it is, because this is a very clear language. I know for sure that he was talking in bits, but people have put the grammar in there and added so that it makes sense. So I don't feel whatever the teachings are there is still 100% purely what he said. It is just like Smriti and Shruti. स्मृति वो होती है जो एज इट इज सुनाई देता है, जैसे हमको ध्यान में जाओ तो कोई मंत्र सुनाई दे, एज इट इज जो गूंज रही है, उसको स्मृति बोलते हैं, एज इट इज ओरिजिनल। और श्रुति वो होता है जिसको मैं सुनता हूं और उसका इंटरप्रिटेशन करता हूं, अपना लिखता हूं, मुझे ऐसे सुना गया। I listen to the original sound and I write it in my interpretation. That becomes a shruti. Smriti is as I originally hear it. So when rishis were listening to the smritis, like the Vedas, the chants going on, the original thing downloaded was written as it is. That is the smritis. Means this is original. No alteration, no modification. But shrutis, if I listen to it and then I write a story about it, a narration about it, that I heard it in this way, or this is what it is interpreted as, it becomes a shruti. So that is involvement of human consciousness. ये इंसान की चेतना उसमें आ गई और उन्होंने उसका विवरण किया, तो उसमें थोड़ा बहुत अडल्ट्रेशन होता ही है। So whatever teachings we have even today in hand, all the shrutis are altercation. तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना अवश्य है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कॉन्टेम्पलेट एंड मेडिटेट ऑन इट, कि आप उस पर ध्यान करो और आपकी चेतना वहां से जुड़ के आप उसको सही मायने में इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। मेरे गुरु हमेशा कहते थे कि आपको पढ़ना है तो स्मृतियां पढ़ो, क्योंकि श्रुतियां किसी और की, unadulterated version. So I don't think any of these are unadulterated, because कहीं ना कहीं human consciousness आ गया। So what we can do today is we have no other scope, but जो हमारे हाथ आया है, जो हम तक पहुंचा है,
उस पर ध्यान करके मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही मैं इसके बारे में विवरण दूंगा, क्योंकि आपको अभी क्लियरली समझ आएगा कि हाउ यू गॉट टू इंटरप्रेट दिस होल वर्सेस। तो उन्होंने जितना सेपरेटली अलग अलग सारे वर्सेस बताए हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन में उन्होंने अलग अलग चीजें बताई, लेकिन सार वही है, जात तत्व के बारे में, वननेस के बारे में ही बता रहे हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्म साक्षात्कार के बारे में बता रहे हैं, हाउ टू रियलाइज योरसेल्फ, द इंपॉर्टेंस ऑफ रियलाइजिंग योरसेल्फ। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई फाउंड, that he is talking repeatedly in the Chidakasha Gita about. Then the next important thing that he is repeatedly talking about is the importance of desirelessness. अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट वो बार बार जो बता रहे हैं चिदाकाश गीता में, वो है डिजायरलेसनेस, यानी कि इच्छा ना होने की स्थिति, इच्छाओं का त्याग। त्याग भी नहीं बोलूंगा मैं, इच्छाओं से परे जाना। कैसे परे जाना, क्यों परे जाना, कितना इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं वैराग्य की, डिटैचमेंट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज अगेन रिपीटेड मेनी टाइम्स इज अबाउट डिटैचमेंट, dispassion. And these two he has linked as most important towards self-realization. That is how I am studying the whole Chidakasha Gita. Desirelessness and dispassion, that is detachment, only can lead you to the self-realization, is what I get a proper understanding of when I repeatedly see what he is trying to focus and emphasize on, which you will also know as we go on verse by verse. आपको भी पता चलेगा जैसे एक एक जा रहे हैं तो इस चीज पे इंपॉर्टेंस आपको बार बार रिपीटिशन दिखेगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उन्होंने ज्यादा बताया है गुरु के बारे में, हु इज अ गुरु, हु इज अ सन्यासी, हु इज अ अवधूत। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बताया बार बार। गुरु कौन होता है, एक सन्यासी कौन होता है, और एक अवधूत कौन होता है। क्लियर क्लियर डेफिनेशन उन्होंने बताया। अवधूत की स्थिति क्या होती है, अवधूत कौन होता है, गुरु कौन होता है, सन्यास कौन होता है, सन्यासी। ये भी बहुत मैंने देखा, रिपीटेटिव है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला, जो मुझे लगता है चिदाकाश गीता का पूरा सार जो है वो विवेक के बारे में, बुद्धि। The whole Chidakasha Gita is talking about a seeker developing the power of discrimination, viveka, through the intellect. तो पूरा चिदाकाश गीता फोकसेस, और पूरा उसका एसेंस एक साधक को ये दर्शाने के लिए कि आपको बुद्धि को तेज करना है, क्योंकि वो विवेक को तेज करना है। विवेक क्या है, जो आप जान सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हर चीज में, हर पड़ाव में, लाइफ में, ये सत्य है या असत्य है, वो आपकी बुद्धि बता सकती है। तो पूरा वर्णन उसी पर है, क्योंकि इन्होंने मन के बारे में बहुत बोला है। इसलिए भगवान नित्यानंद का तत्व है निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन। The main teachings revolve around purification of the mind and developing the intellect, that is the buddhi. These teachings are Nirmal Man, pure mind; Nischal Man, still mind; Vishal Man, vast mind that has merged into the collective. This is based on the Chidakasha is completely, all that is talking is to purify the mind by using the intellect. इंटेलेक्ट को ऊपर रखा उन्होंने, बुद्धि को, मन को जो है नीचे रखा है। हमेशा वही बार बार दर्शा रहे थे, मन ऊपर बुद्धि नीचे नहीं होना चाहिए, बुद्धि हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि
आपको बताती कि क्या सही है क्या गलत है। मन में बहुत कुछ चीजें चलते रहती है, लेकिन कैसा पता चले कि सही क्या गलत है? So many things go on in the mind, vrittis are there. How to know what is right and what is wrong? Only if you have the power of intellect, the power of discrimination, you will be able to take proper decisions in life through by using the mind. When you look at the mind, because mind is your tool, you function from your mind. So the whole Chidakasha Gita is completely talking about purification of the mind by the power of discrimination. सही सोच क्या है उसको चुन के, जो सही नहीं है उसका त्याग करके, living what is not right and choosing what is right from the vrittis of the mind through the intellect, power of discrimination, you attain purification of the mind. जो मैं बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, जो हिमालयन योगीज के पास भी मैंने सीखा, अपनी यात्रा में सीखा, पूरा हमारा अध्यात्म जर्नी, द होल जर्नी ऑफ spirituality which I have learned here in my Guru's presence and from the Himalayan masters is that everything should lead to Chit Shuddhi. So this is all Chidakasha Gita is talking maximum about Chit Shuddhi. That is the purification of the mind. How to do that? What to do? There are some processes that we have seen. The processes are alternative. मैं प्रोसेस को नहीं पकड़ रहा हूँ जोर से, क्योंकि प्रोसेस विभिन्न पथ में अलग अलग प्रोसेस हैं, तो अपने अपने प्रोसेस वो फॉलो कर सकते हैं जो भी है, नॉट नेसेसरी यही प्रोसेस फॉलो करना, बट मैं तत्व बोल रहा हूँ जो एम है चिदाकाश गीता, इट इज टू ब्रिंग चित्त शुद्धि. Whatever tools, whatever sadhana, whatever methods or techniques you use, that's upon you, but the whole intention is to purify the mind, to attain chitta shuddhi. If you see, all the paths are leading to that. Even Ashtanga Yoga, Patanjali Yoga Sutra, it talks very highly about chitta vritti nirodha, vrittis, the fluctuations of the mind in the chitta. वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध, stopping, cessation of these fluctuations of the mind, because only then stillness of the mind comes, निश्चल मन होता है और निर्मल मन होता है, प्योर माइंड ले सकते हैं, जिसकी वजह से वास्ट माइंड, शाल मन होता है. So it's very beautifully what he has again and again taught the world in these phrases. Then he has importantly talked about the unimportance of material or worldly life. बार बार उन्होंने कई बार मटेरियल वर्ल्ड या अपनी दुनियादारी को उतना महत्व नहीं दिया. बार बार he has kept guiding people to rise above worldliness. दुनियादारी से ऊपर उठो, माया से ऊपर उठो, ये बार बार इसमें उन्होंने बताया. उसके बाद फाइनली उन्होंने बहुत सारे टिप्स प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पे दी, बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीजें उन्होंने बताई, सीधे सीधे बात, घुमा फिरा के सीधे तत्वों पे बहुत बहुत बातें ऐसे जो उन्होंने बताई. उन्होंने सारे डिस्क्रिमिनेशन जो हम भेद करते हैं, भेद की हमेशा निंदा की. He always was against discrimination, duality, differences, and he very rigidly rejected any kind of discrimination, even in caste systems or religion. That also you can see it again and again he's talking. Then he's talking more about the heart space. So the final goal of Chidakasha Gita is to merge into the Chidakasha. Chid plus Akasha. Chidakasha. Chidakasha. It is similar to Chidambaram. Chit
plus ambaram. Ambar, sky. Akash, sky. Chidambaram or Chidakash. Both are almost the same. And this is the same what we have in Chidambar Rahasya. In Chidambaram temple in the South India, if you see, Chidambar Rahasya is there. अगर आप चिदम्बर में देखोगे तमिलनाडु में, वहाँ शिव जी का मंदिर है, शिव तत्व का, जो आकाश तत्व के ऊपर है, और गर्भगृह में कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस। बाकी सब तत्वों में आपको शिवलिंग दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे चिदम्बरम में आपको कोई शिवलिंग ही नहीं दिखेगा, यानी कि नथिंगनेस, चिदाकाश। तो उन्होंने चिदाकाश का मीनिंग एग्जैक्टली इज द स्काई ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर एक आकाश है, बाहर एक आकाश है, और हमारे अंदर भीतर एक आकाश है। एंड दिस आकाश, दिस होल head is what he is referring again and again as the Chidakasha, and this he is referring to as the heart space. We will see detail in that. So yatra from Muladhara to the Sahasrara is what he is talking again and again. Through Nadi, he is talking very much about Kundalini and all that. Spiritual evolution के बारे में बता रहा हूँ। Being in the world, उन्होंने कभी स्ट्रांगली किसी को संन्यास के बारे में नहीं बताया, दुनिया छोड़ने को नहीं बताया। दुनिया में रह के अध्यात्म, being in the world, to pursue the spirituality is what his tattva was. But being in the world, developing vairagya was what his tattva was. Being in the world, yet not in the world, not of the world. दुनिया में रह के भी दुनिया का ना होना, यही उनका तत्व है। So I will begin this from tomorrow with verse 1 beginning from tomorrow. I think we'll have in half an hour we'll be able to finish it. As introduction it might have gone a little more. So every day I will do 6 to 6:30 one verse, and if you want you can keep noting whatever you can, and the recordings will be left behind. साथ ही साथ मैं जो फुल वर्ड का ट्रांसलेशन भी किया था पिछली बार, वो भी इसके साथ मैं डाल दूंगा। तो वंस दैट लाइव इज ओवर, कुछ समय बाद आपको वो दिखेगा नीचे पूरा विवरण, और उसमें आप ट्राई टू इवन पुट इमेजेस, मेक डायग्राम्स, ये सब कोशिश की थी मैंने, तो वो अभी भी है। तो वो दैट आई विल प्रेजेंट इट ऑन माय वेबसाइट ओनली डायरेक्टली, इट्स shiftingintoawareness.com। उस पर आपको एक जगह में ये अलाइन होता हुआ दिखेगा, वन आफ्टर द अदर। you'll have the whole paragraph, the words, the commentary on it, and this live video on that. So it can help you in whatever ways. And this is all due to the grace of my Gurudev and the Guru Mandala, which I credit to completely to them, otherwise I am no one to do this. And if at all any mistakes happen in any way, because I am a human being, I would ask pardon for it. गलती से भी अगर कोई गलती हो जाए मेरे ट्रांसलेशन या बातचीत में इसमें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा। But I'll try my best to keep it aligned to the highest of consciousness. With this, I take a leave for today. We'll meet tomorrow at 6 o'clock. Gurudev Sharanam, Guru Mandala Sharanam, Avadhuta Chintanam, Shri Gurudev Datta. May we all evolve, may we all be free.